Students, in previous study, we learn the number system. Today, we will learn about international system of numeration. Students, you know that we use numbers from morning to till night in almost every work. We use numbers in clock to see the time. We use numbers to count the total number of students in the class. Place value system is used to represent a large number. In yesterday, in previous learning, we learned the Indian place value chart. Today we will learn the international system of numeration. In international system of numeration, numbers are formed in groups, many groups like ones group, thousand groups, millions group and billions group. And these groups are divided in smaller subgroups. Ones group is divided into ones, tens and hundreds. Thousand group is divided into thousands, 10,000s, 100,000s. Millions group is divided into million, 10 million, 100 billion. Billions group is divided into billion, 10 billion and 100 billion. In international system of numeration, numbers are arranged in group of 3 digits. Group of 3 digits. The last three digits of any number are grouped in ones group. After ones group, thousand group starts. In thousand groups, numbers are divided in thousands, 10,000s and 100,000s. And after thousand groups, millions group starts. Numbers are divided into billions, millions, 10 millions, 100 millions. And after million group, billion, 10 billion and 100 billion. So the numbers are formed in the group of 3 digits. Suppose in any number, if only one digit, so we can say that it is the ones place. If there is two digits in any number, so we can say that this is only tens place. If the total number of digits is 3, we can say it is under 100 subgroup. If the number of digits is more than 3, means 4, 5, 6 or 6. 4 means thousand group starts. 1,000, 10,000, 100,000. Million, 10 million, 100 million. Billion, 10 billion, 100 billion, etc. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन में संख्याएं 3-3 के समूह में अरेंज की जाती हैं, नोट की जाती हैं। तो सबसे किनारे दाहिने साइड में, राइट साइड में वंस का ग्रुप होता है
इसमें 3 सब ग्रुप होते हैं, 100, 10 और 1s के। 1s के बाद 1000 का ग्रुप स्टार्ट होता है। 1000s में भी 3 सब ग्रुप होते हैं, 1000, 10,000, 100,000। 100,000 के बाद मिलियन का ग्रुप स्टार्ट हो जाता है, इसमें मिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन, इसके बाद बिलियन स्टार्ट हो जाता है। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन में हम नंबर्स को हमेशा 3-3 के ग्रुप में नोट करते हैं। जैसे मान लीजिए नोट करना हमको है देखिए, मान लीजिए इस नंबर को हमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन में अरेंज करना है। तो क्या करते हैं, हमने बताया आपको, सबसे पहले नंबर्स को 3-3 के ग्रुप में अरेंज करते हैं। 1s, 10s, 100 के बाद यहां कॉमा लगा दीजिए, फिर 1000, 10,000, 100,000 कॉमा लगा दीजिए, फिर क्या बचा है आपका मिलियन, 10 मिलियन। इसको आप पढ़ेंगे 46,245,670, because here the rightest 3 digits are 1s group and next 3 digits are 1000 group and other 2 digits are of millions group. So we can write it 46,245,670. Understand? Once again I told you, a large number 46245670 is written on your blackboard. We have to arrange this number in international system of numeration. एक बड़ी संख्या ब्लैक बोर्ड पर नोट की गई है, इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन में अरेंज करना है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इन नंबर्स का 3-3 का ग्रुप बना लीजिए। राइट से 3-3 का ग्रुप बनाइए। 1s, 10s, 100s, 1s, 10s, 100s, ये 1s का ग्रुप हो गया। उसके बाद 1000, 10,000, 100,000, ये आपका ग्रुप हो गया 1000 का। उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन। देखिए इसको नोट करेंगे हम, ये मिलियन का ग्रुप हो गया, ये 1000 का हो गया, 1s का हो गया। इसको नोट करेंगे आप 46,245,670, ऐसे नोट करेंगे। एक आधा नंबर नोट करते हैं। देखिए इस नंबर को नोट करना है। पहले आप 3-3 का ग्रुप बनाइए, 1 2 3, 1 2 3। अब देखिए जो आपका सबसे दाहिने में, सबसे किनारे राइट साइड में, ये आपका 1s का ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप? 1s का ग्रुप। उसके बाद का ग्रुप होता है 1000 का। तो आप कैसे नोट करेंगे इसको? 287 thousands 406, 287,406, ऐसे आपको नोट करना है। मान लीजिए 854 686 742। देखिए ये एक लार्जेस्ट नंबर नोट की गई है, 854,686,742। इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन में अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप 3-3 का ग्रुप बनाइए, यहाँ कॉमा लगाइए, यहाँ कॉमा लगाइए। 3-3 का ग्रुप बनाएंगे, वो भी राइट साइड से। राइट साइड से 3-3 का ग्रुप जहां बनेगा वहां कॉमा लगाते जाएंगे। अब देखिए जो सबसे राइट साइड में जो ग्रुप बनता है वह आपका 1s का ग्रुप होता है।
उसके बाद 1000 का ग्रुप, उसके बाद मिलियन का ग्रुप। आप कैसे नोट करेंगे? आप इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन में कैसे नोट करेंगे? देखिए इसको नोट करेंगे आप 854 मिलियंस 686,742। अंडरस्टैंड? वंस अगेन आई रिपीट, सपोज कीजिए एक नंबर लिखी गई है 46245,670, इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन में अरेंज करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले नंबर्स में 3 के डिजिट्स का ग्रुप बना लेंगे, वो भी कहां से? राइट साइड से। देखिए 3 नंबर सेव हो गई, जहां 3 नंबर का ग्रुप कंप्लीट हुआ वहां कॉमा लगा दीजिए। फिर यहाँ देखिए 3 का ग्रुप बना, यहाँ कॉमा लगा दीजिए। अब देखिए जो सबसे किनारे वाला वंस का ग्रुप है, उसके बाद 1000 ग्रुप है, उसके बाद मिलियन ग्रुप है। कैसे रीड करेंगे इसको? 46,245,670। नेक्स्ट द अदर नंबर इज रिटन हेयर 287406। इसको भी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन में अरेंज करना है। आप 3 का ग्रुप बनाइए, 604 एक ग्रुप बन गया, कॉमा लगाइए यहाँ, फिर 782 एक ग्रुप दूसरा है, वंस का ग्रुप है, फिर 1000 का ग्रुप, फिर मिलियन का ग्रुप, फिर बिलियन, ऐसे होता है। तो इसको आप नोट करेंगे, ये 1000 ग्रुप है 287,406। देखिए एक और लार्जेस्ट नंबर नोट की गई है 854,686,742। इसको ग्रुपिंग कर लीजिए, 3 का ग्रुप बनाइए, वंस ग्रुप, 1000 ग्रुप, मिलियंस ग्रुप। रीड कैसे करेंगे इसको? 854 मिलियंस 686,742। स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम बड़ी से बड़ी नंबर्स को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन में अरेंज कर सकते हैं। अब आगे आते हैं। आगे आपको पढ़ना है कंपेयरिंग नंबर्स, कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स। Comparing numbers. Students, to compare numbers, following steps are adopted. Situation 1. Situation 1. To compare numbers, some rules are followed. In situation 1, the greatest number has most thousands and the smallest is only in hundreds or tens. Once again I repeat, in situation 1, the greatest number has most thousands and the smallest is only in hundreds or tens. Suppose some numbers are written here. Which number is greatest? In these numbers, which number is greatest and which is smallest? I told you to compare numbers, some steps, some rules are followed. So situation 1, in this situation the greatest number has most thousands and the smallest is only hundreds और टेंस। जो संख्या सबसे बड़ी होती है उसमें कई थाउजेंड्स होते हैं या कई बिलियंस होते हैं,
लेकिन जो स्मॉलेस्ट होती है उसमें ओनली टेंस होते हैं और हंड्रेड्स होते हैं। इसलिए चूंकि सबसे ज़्यादा थाउजेंड किसमें, इसमें सबसे ज़्यादा थाउजेंड्स इस नंबर में है, यह नंबर सबसे ग्रेटेस्ट होगी। और किस नंबर में टेंस और वंस हैं, टेंस इसमें है, ओनली टेंस ही हैं 63, यह नंबर सबसे स्मॉलेस्ट होगी। यह आपका सिचुएशन 1 है। सिचुएशन 2 देखिए। सिचुएशन 2 is, in this situation 2 numbers have same digits. 2 numbers have same digits. सपोज कर लीजिए लिखा गया 4542 6872 and 8762. Few numbers are written here. We have to compare these numbers. In this situation, two numbers have same digits. 2 or more numbers have same digits. इसमें भी 4 डिजिट्स हैं, इसमें भी 4 डिजिट्स हैं, इसमें भी 4 डिजिट्स हैं। आप कैसे कंपेयर करेंगे? क्योंकि जो नंबर्स दी गई हैं सब में नंबर और डिजिट्स सेम है। We at first compare the first digit of the number. If they are same, then we compare the second number. सबसे पहले इन नंबर्स के फर्स्ट डिजिट को आप कंपेयर करते हैं। लेफ्ट से फर्स्ट 4 है, यहां 6 है, यहां 8 है। 4, 6 and 8 तीनों में सबसे ग्रेटेस्ट कौन है? 4, 6, 8 में 8, तो यह नंबर सबसे क्या होगी? ग्रेटेस्ट होगी। और इनमें 4 स्मॉलेस्ट है, यह नंबर सबसे क्या होगी? स्मॉलेस्ट है। मान लीजिए 8762 था, यहां एक और नंबर लिख दी गई 8763। अब देखिए इनमें कौन ग्रेटेस्ट होगा? जब आपका सबसे लेफ्ट वाला डिजिट, पहली बात जब नंबर्स में डिजिट सेम हो तो सबसे पहले आप सबसे लेफ्ट वाले डिजिट को कंपेयर करते हैं। अगर वो सेम आता है तो उसके बाद वाले डिजिट को कंपेयर करते हैं। उसके बाद 7 है, इसको कंपेयर कर लीजिए, तब भी सेम आया। सबसे आपने लेफ्ट के डिजिट को कंपेयर किया, वो सेम आया, तो उसके राइट आइए, उस डिजिट को कंपेयर कीजिए, वो भी सेम आया, फिर उसके राइट में आइए। 6 है, इसको कंपेयर कीजिए, ये भी बिल्कुल सेम आया। अब क्या करेंगे? फिर जो सबसे राइट में डिजिट बताया उसको कंपेयर कीजिए। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। 3 इज ग्रेटर देन 2, देयरफॉर दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर। तो सबसे पहले आप ये देखिए जो नंबर्स दी गई हैं क्या सब में डिजिट सेम हैं? अगर डिजिट सेम है तो सबसे लेफ्ट वाले डिजिट को कंपेयर कीजिए। अगर वो सेम आती है फिर उसके राइट वाली डिजिट कंपेयर कीजिए। अगर वो भी सेम आती है फिर उसके राइट वाली डिजिट कंपेयर कीजिए। अगर वो भी सेम आती है तो सबसे लेफ्ट वाले डिजिट को कंपेयर करके आप नंबर्स को देख सकते हैं कौन सी नंबर ग्रेटेस्ट है, कौन सी स्मॉलेस्ट है। आगे आपका है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। Students, you know very well about ascending and descending order. You know very well about ascending order. Ascending order means arranging numbers from smallest to largest. Ascending order means arranging numbers from smallest to largest. Suppose that some numbers are given here: 676, 8592, 76 and 89650. There are 4 numbers are written here. We have to arrange these numbers in ascending order.
Ascending order means arranging the numbers from smallest to the largest. Smallest to the largest, छोटे से बड़े की ओर। इन नंबर्स में पता करिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सी है, आप बता पाएंगे 76। इसको आप सबसे पहले नोट कर दीजिए 76। उसके बाद इससे बड़ी नंबर कौन सी है 676। उसके बाद कौन सी बड़ी है 8592 और सबसे बड़ी कौन सी है 89750। ये नंबर सबसे बड़ी है। तो नंबर्स को इस प्रकार अरेंज करना कि स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। अब आते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर पर। डिसेंडिंग ऑर्डर मींस अरेंजिंग द नंबर्स फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बड़े से छोटे की ओर। जैसे मान लीजिए लिखा गया 100, 1000, 10,000। इसको आपको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर मींस अरेंजिंग द नंबर्स फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इनमें सबसे बड़ी नंबर कौन सी है 10,000, इसको पहले नोट कीजिए। उससे छोटी कौन सी है 1000, उससे छोटी कौन सी है 100 और सबसे छोटी कौन सी है 10। Arranging the numbers from greatest to smallest is called the descending order. Students, today you learn about the international system of numeration, the comparing numbers and ascending and descending order very well. Few topics of this chapter will teach you in your next class. Thank you. Have a nice day.